Namaskar. I welcome you all to this beautiful evening of conversations on the craft, poetics of translating the work on the craft and poetics himself, that is Gulzar Saab, by none other than Satya Sarangi. This book began 16 years ago when the author, recipient of the Golden Lotus, the Swarn Kamal, Yatindra Mishra, started his conversations deep diving into lives, times, and art of Sri Gulzar Sahab. Gulzar Sahab is one name that needs no introduction, at least in the lifetimes that we are surviving in. The recipient of Oscar, the recipient of several Filmfare Awards, the recipient of Dada Saheb Phalke Award, recipient of the Gyanpith Award, and recipient of the highest civilian order in the country, Gulzar Saab is an iconic figure, the Paras that we call in Hindi. Whosoever touches him gets a sense of life and a dust of gold on their soul. To translate this icon, whose work in a language that is not only once but twice removed from the soil in which his writings are embedded, is a task in its own right. I don't think anyone other than Satya Sarangi, who's an ace journalist herself, could have done this monumental task of translating Gulzar. This evening is going to trace, chase, and will be trying to find this idiom of the enigma that Gulzar is, and it's going to be a very intimate conversation about translations with the translators, with the writers, with the journalists, and of course, a poet who's going to be on the stage with us. I welcome the lady of the moment, Satya Sarangi, on stage. Satya ji, please join us. The translator of Gulzar Saab and Caged, a journalist, a towering journalist, and more than a translator, I think she is a reader of souls. And it's an absolute honor for all of us at the House of Vani to have worked with her, Satya ji. I request you to please. I request Shri Om Nishchal ji to please join us on stage. हिंदी में यदि कोई कविता के आलोचक कविता को उसकी आत्मा और उसकी सहजता, उसके युग के मापदंड पर नापते हैं और कविताओं को जन जन तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, वो ओम जी हैं। बेहद सम्मानित हम सभी के प्रिय ओम जी, स्वागत है ओम जी आपका। I request Srimati Jayanti Ranganathan ji to please join us on stage. Senior journalist, been with the दैनिक हिंदुस्तान और जिनके करियर की शुरुआत ही धर्मवीर भारती जी के साथ हुई, धर्मयुग में मुंबई से दिल्ली का उनका सफ़र, और इस समय युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि उनके युवाओं के लिए लिखे गए उपन्यास उनके युवाओं के लिए लिखे उपन्यास बहुत बहुत पॉपुलर हैं और आप सब देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। जयंती जी, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। आई नाउ रिक्वेस्ट Nishtha Gautam ji to please join us. Nishtha ji has been a journalist. She has been my teacher at the University of Delhi. And she has translated Sahitya Academy Award-winning author Anamika's book, Trindhari Oat in English, called The Sita's Wheel. She has been writing on society, wars, abandonment of children, मुद्दे जो हमारे आम जीवन में हमारी आत्मा को झकझोरते हैं। और इन सभी के साथ अब मैं इस पूरे पैनल की बागडोर ओम जी के हाथ में छोड़ती हूँ
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सब आए और इस ट्रैफिक के बीच में भी हमारे साथ आए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। वाणी प्रकाशन की ओर से आप सबका अभिनंदन, स्वागत। बहुत ही अच्छी बात है कि इधर लगभग एक दशक से, एक डिकेड से जो कथेतर गद्य का संसार है वो बहुत समृद्ध हो रहा है। मुख्य धारा की कविता कहानी तो अपने आप में एक अहमियत रखते ही हैं, लेकिन साहित्य का संसार केवल कुछ विधाओं, शैलियों तक रह जाए तो इससे लगता है कि जीवन की अभिव्यक्तियाँ कितनी अधूरी और अछूती रह जाती हैं। इसलिए आज जिस किताब के अनुवाद पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं चर्चा करने के लिए, जिसकी अनुवादिका हैं सत्या शरण जी, ये निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि है और वाणी प्रकाशन ने इसे संभव किया है। मैं इसके केंद्र में जो गुलजार जी हैं, जिनके बारे में अभी अदिति जी ने कहा कि गुलजार जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जो शख्स विभाजन के समय एक ऐसी स्थिति में रहा हो, ऐसे हालात से गुजरा हो जहाँ पर जीवन का अस्तित्व ही बहुत संकटमय हो, जीविका संकटमय हो, भागम भाग हो, जिस दौर को जानने पहचानने के लिए तमस जैसे उपन्यास लिखे गए, और शुरुआती दौर पर जिसके इम्प्रिंट गुलजार के लेखन में भी हैं, उनके जीवन में भी हैं, आगे चलकर जो आज उनकी शख्सियत बनती है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी पर्यावरण में रहने वाला हर व्यक्ति, उसके दिल में कहीं एक ऐसी जगह है, वो जो कुछ कहना चाहता रहा है उसके बदले हमेशा से शायर, साहित्यकार, लेखक, उपन्यासकार, कथाकार कहते हैं हमारी कहानी कोई और मुझसे बेहतर कह सकता है। और इस तरह गुलजार जी ने शायरी, फिल्में, संवाद, पटकथा, गीत और बच्चों के बारे में जो बोस्की को केंद्रित करके बहुत सारी चीज़ें लिखी, और कहाँ उनकी भागीदारी नहीं रही है जहाँ आम जनता फिल्मों से जुड़ती है और एक बड़े संसार से जुड़कर वो अपनी अभिव्यक्ति को, अपने जीवन को चित्रित हुआ पाती है। उसमें जो शब्द गुथे हैं, जो गीत गुथे हैं, जो संवाद गुथे हैं, सबके को अंजाम देने वाले, सबको शब्द देने वाले गुलजार जी, और उन पर लिखने के लिए एक ऐसा लेखक जो अवध का है। एक कवि कहते हैं कि मुझे पहचानना जैसे अवध का आदमी पहचाना जाता है। अवध की जो अवधी भाषा है उसकी अपनी मिठास है, और यतीन्द्र अपने शुरुआती जीवन से अयोध्या और अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, विभाष, विस्मय का बखान इत्यादि कृतियों से होती हुई, यानी साहित्यिक दीक्षा और संस्कार से होते हुए वे पदार्पण करते हैं जीवनियों के क्षेत्र में। तो सुर की बारादरी बिस्मिल्लाह खां पर, सोनल मानसिंह जी पर, गिरिजा देवी पर, और लता जी पर, और अब गुलजार पर एक बड़ी इतनी पायदान पर चलते हुए जिस शिखर पर आज हैं, उन्होंने ये मेयार भी संभव किया है कि अगर जीवनी लिखनी है तो उस तरह से लिखें। किसी के जीवन में ताक झांक करना है तो किस खूबसूरती और किस सलीके से हम उसमें प्रवेश करें, उसका एक सलीका विकसित किया यतीन्द्र मिश्र ने। और अपने कवि को कहीं ओझल करके भी, जैसे बहुत सारे लोग जो संपादक होते हैं वे अपने समय को इस तरह न्यौछावर करते हैं अन्य सारे कामों में कि उनका अपना व्यक्तित्व जो है वो लगभग तिरोहित रह जाता है, जो मूल व्यक्तित्व है। लेकिन यतीन्द्र की खासियत है, अभी जो उनकी किताब जो कविता की आई है उसमें फिर उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई है कविता को, जो खामोशी, जो मौन, जो अव्यक्त की असंभव दुर्निवार शक्तियां हैं उससे संभव करना होता, कविता बहुत कम बोलती है। तो उस तरह से ये लग रहा था कि शायद ये लेखक किसी जीवनी, दूसरों की गाथा गाने में ही इसका जीवन खप जाएगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन यतीन्द्र ने फिर अपनी कविताओं से अपनी समय की समकालीनता को अपनी कविताओं में दर्ज किया है। मैंने वे कविताएं पढ़ी हैं और अक्सर उनकी बहुत सारी पुस्तकों पर, लगभग सभी पर लिखा है, और मैं जानता हूं कि कविता बहुत कम बोलती है, और जिसे कविता के संस्कार हों वो अगर गद्य लेखन पर आए तो उसका नैरेटिव, उसके गद्य का जो स्थापत्य है वो बिल्कुल अनूठा होता है। ऐसे अनूठे गद्य और
उसकी पोएटिक सेंसिबिलिटी को ट्रांसलेट करना, जिसमें नैरेटिव भी है, सूचना भी है, गुफ्तगू भी है, यानी इतनी अनौपचारिकताएं हैं। और गुलजार का जो संसार है, जो लोक धुनों को भी आयत्त करता है, जो उर्दू और अरबिक उस शैली में भी जिसका गद्य और पद्य पगा है, जिसके संवाद पगे हैं, और तो उस पर लिखना ही यतीन्द्र के लिए भी एक चुनौती है। जैसे लता जी एक चुनौती थी। गायक के पास कोई शब्द नहीं होते, गायक तो गाता है, लेकिन लता सुरगाथा को जिस तरह से विन्यस्त किया, इतने वॉल्यूमिनस, और कहीं भी शब्दों का कोई स्खलन नहीं, कोई भाषिक कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर आपको रिक्तता का एहसास हो। भाषा और शब्दों का संसार तो बहुत विपुल है, उसमें है कितना, उसका वजन कितना है। बहुत सारे संसार, शब्दों का संसार जाया करने वाले लोग भी हैं। यतीन्द्र ने इतने सलीके से उनकी जीवनी लिखी है, 150 से ज़्यादा पन्नों में से संवाद किया है। संवाद के ज़रिए बेसिक सवाल से कहाँ पैदा हुए, वहाँ से लेकर और तमाम फिल्मों, तमाम कश्मकश जीवन में किसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी मुझे लगता है गुलजार खुद हैरत में होंगे। और उन्होंने लिखा भी है कि मतलब मुझे लगता है कि इससे बड़ी आश्वस्त गुलजार के लिए नहीं हो सकती कि गुलजार के जीवन को देखने वाला इतने कोनों से उलट पलट के उसी सहानुभूति और सहृदयता के साथ, क्योंकि अगर कवि का हृदय छंद एक कवि से मिलता है, कवि गुलजार, बेसिक तो ये मूल मुद्दे हैं। तो यतीन्द्र जी ने जो पुस्तक लिखी गुलजार पर, 1000 राहें मुड़ के देखी, गुलजार साहब, अद्भुत पुस्तक है। अब मैं आता हूँ, सत्या शरण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पहले तो उनका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस पैनलिस्ट में सहचिंतन में शामिल हैं जयंती रंगनाथन जी, हमारे समय की जानी मानी उपन्यासकार, कथाकार, और अनिशिता गौतम जी जो पत्रकार हैं, जो निष्ठा, तो मैं निशिता क्यों समझ रहा हूँ, तो मुझे माफ़ किया जाए, निष्ठा के प्रति मेरी भी निष्ठा स्वीकार की जाए। कुछ हो सकता है कहीं मैंने देख लिया हो और उसका भी कोई अर्थ होता हो। बहरहाल निष्ठा जी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत अच्छी बात है कि सत्या शरण जी यहाँ अनुवादक के रूप में है, लेकिन उनकी शख्सियत लेखक के रूप में, एक संपादक के रूप में लंबे अरसे तक फेमिना से जुड़ी रही हैं। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें कि लाइफ एंड म्यूज़िक ऑफ जगजीत सिंह, सुर मेरे बंधु, द म्यूजिकल वर्ड ऑफ एस डी बर्मन, हरिप्रसाद चौरसिया, ब्रीथ ऑफ द गोल्ड, द डार्क साइड उनका कहानी संग्रह, अबरार अरबीज जर्नी, और 10 years विद गुरुदत्त। इतनी सारी पुस्तकों, यानी इनके लेखन में भी बायोग्राफी और जीवन पर लिखने का जो जुनून है, जो इनकी प्रवृत्ति है, जो इनका सलीका है, वो ये बताता है कि खुद एक अच्छी कथाकार होते हुए भी इन्होंने दूसरों के जीवन को बहुत ही सलीके से विन्यस्त किया। इसलिए जब इन्होंने अनुवाद किया गुलजार का, और इसी साथ इनकी किताब में देख रहा था अभी जो हाल में आई है, केज्ड, जिसमें कि गुलजार के मेमायर्स दर्ज हैं, अपने समय की जो तमाम विभूतियाँ हैं, जो तमाम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, याद करने योग्य, उनके बारे में गुलजार जो अपने पोएटिक कमेंट्स करते हैं, जो उन पर स्मृति चित्र अंकित करते हैं, शब्द चित्र अंकित करते हैं, उनका अनुवाद भी, जैसा कि मैंने कहा कि गद्य का अनुवाद ऐसे देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन आप कभी जे कृष्णमूर्ति के पास जाएं, जिनके पास बहुत आसान शब्द हैं, लेकिन जब आप उनको अनुवाद करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें पेश आती हैं। उस आसान सी लगने वाली अंग्रेजी शब्दावली का भी हिंदी में अनुवाद करना वो बहुत मुश्किल होता है। और हिंदी में, हिंदी जो इतनी कठिन हो, और सत्याशरण जी के लिए हो सकता है बहुत मुश्किल भी हो, चूँकि अभी मैं पूछ रहा था तो वे तमिल भाषी हैं, तो इसलिए उन्हें विशेष नमन। चूँकि इस दुनिया में, इस हिंदी की विराट दुनिया में जो दूसरी भाषाओं से लोग आए हैं, वे बहुत कल्याण कर रहे हैं। जैसे अभी हमने हरिहरन जी की गायकी देखी और उनके तलफ़ुज़ देखे, उनका अंदाज़े बयां देखा। वो खुद जो तमिल भाषी हैं, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वो हिंदी और हिंदवी और उर्दू, इसमें वो दीक्षित होंगे और गाएंगे, और पूरा संसार उन्हें सुन रहा है। तो बहुत बहुत बधाई सत्याशरण जी यहाँ पर हैं उपस्थित। आज की जो सबसे बड़ी बात है कि निष्ठा जी, शायद आपके पास थोड़ा समय कम है कि पूरी बहस में शायद उपस्थित न रहें,
तो ये बताएं कि सबसे पहले आप अपनी भाषा में उत्तर दे सकती हैं, इसकी कोई नहीं है। गुलजार जो इतनी वॉल्यूमिनस पुस्तक है और जो कि एक लगभग 1.5 दशक के लेखन का नतीजा है यतीन्द्र मिश्र के, और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी की अपनी जो पारिभाषिकी, हिंदी की जो अपनी भाषाई गुणवत्ता है, उसमें कहीं भी यतीन्द्र समझौता नहीं करते हैं। जब वो ट्रांसलेशन के रूप में शक्ल अख्तियार करती है पुस्तक गुलजार, जो आपने देखी और पढ़ी होगी, तो आपके ऊपर पहला जो इम्प्रेशन है वो इसके अनुवाद को लेकर क्या पड़ा? क्या आपको लगा कि आप उसी भाषा में, जिस भाषा में आप सोचती हैं, समझती हैं, पढ़ती हैं, वैसा इस अनुवाद में आपको ऐसा लगा, वो आनंद? असल में मेरा जो देखते ही जो मेरे दिमाग में पहली बात आई थी वो मैंने सत्या जी से आते ही साझा करी कि ये आसान किताब नहीं है अनुवाद करने के लिए, और कुछ जो हिस्से थे किताब के वो मुझे देखकर ही लगा कि इसमें शायद इनको बहुत वक्त लगा होगा। इन्हें बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है, एक ऑथोरियल फ्रस्ट्रेशन, उसका एक अलग जायका है, उसका मज़ा है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अनरावल something, and when it unravels you're like, great, I have accomplished it, but that moment of unraveling can be really frustrating. और मुझे देख के ही लग गया कि इसमें तो बहुत सारी ये आई होंगी, मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ ही दूँ क्या, मुझे नहीं करना। और मे बी and the first question that I asked her when I met her right now was, were there any passages that you were like, okay, I'm not translating them because either I don't feel confident about bringing the essence, or my translation doesn't add anything to the narrative. और ये दो decisions बहुत ही important होते हैं एक translator के लिए, क्योंकि मैंने जब अपनी किताब अभी translate करी अनामिका जी की किताब, तो एक जो passage है वो मैंने हटा दिया with due consultation with the author, with the publisher, that this particular section जो हिंदी linguistics के ऊपर एक section है, it does not make sense to the target audience, the target reader, because they do not understand it, and just one paragraph on Hindi linguistics does not add, I mean, it does not even inspire them to explore it further. वो कुछ नहीं करता है for English audience, तो उसको क्यों रखना है हमें? या तो हमको केवल ये I could have translated it, but would it have made sense to the reader? And I'm sure you must have come across these dilemmas as a translator. What am I actually presenting to the reader? कि मुझे reader को ये दिखाना है, do I want to come across as a smart one? Oh, देखो मैंने ये कर दिया, and now it's up to you कि तुम्हें कैसे इसको consume करना है, तुमको कैसे इसे read करना है, तुमको समझ में आए या ना आए, मैंने अपना काम कर दिया है. Yes. Well, there were such moments, I must agree. And yes, I will admit that if Yatindra had been in front of me, there was serious danger of my trying to strangle him. There were moments I would actually once or twice even tell Aditi that, the way Hindi is written is so different from the way English is written that I cannot start every sentence with "it's important to know" or "we must realize this." Ye ghuma ke, we have been taught in journalism, get to the point in the first sentence. So then I said the same thing to Gulzar Saab. And he said, "Tum jaise crisply likhti ho na, वैसे ही लिखो. Forget the fact that you're translating somebody. Get the essence and write it." So I got my strength from that. That yes, and there were moments when I felt, but I was very faithful to the original, because with Lataji's book, Yatindra had told me कि बहुत सारा कट के निकल गया उसमें से और मुझे बहुत बुरा लगा, ड्राई हो गया किताब. So I said I will not let him complain about this book. So I kept everything. वो ट्रांसलेशन थियोरी में वो बात होती है ना कि दो तरीके होते हैं ट्रांसलेशन के, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन एंड सेंस फॉर सेंस, एंड आई कुड मेक आउट दैट दिस इज़ अ सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, बिकॉज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने के तो अब कोई मायने है नहीं,
बिकॉज चैट जीपीटी तो कंप्यूटर कर लेगा। चैट जीपीटी बहुत आसानी से अब मतलब उससे 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 तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे. सो आई थिंक द ओनली ह्यूमन इंटरवेंशन वी कैन मेक इनटू दिस लिटरेरी क्रिएटिव वर्ल्ड इज interpreting it from our standpoint, from our location in a particular historical moment, in a particular geographical, cultural space, and that's what allows us to interpret the text. और यहाँ तो मतलब कमाल की बात है, मुझे तो रश्क हो रहा है आपसे कि गुलजार और यतीन्द्र भाई दोनों की मतलब आपने साथ में उनके काम किया है. सो इट्स अ रिमार्केबल थिंग. मैंने काम किया अनामिका जी के साथ, मैं उसी में इतनी अपने आप को मैं बिल्कुल आभारी हूँ अदिति की. बट अब जो वो उनके जो कैरेक्टर्स हैं राम और सीता, उनसे तो खैर मेरा कहाँ राब्ता हो सकता है. But the source material was actually, blessing you in a way that you go ahead and do and take your creative liberties, and I'm with you that way. I think निष्ठा जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि आपने अनामिका जी को ट्रांसलेट किया तृणधरी ओट, और जाहिर है कि अनामिका जी की भाषा काफ़ी वर्तुल और काफ़ी मतलब उसमें जो सांस्कृतिक ध्वनियाँ हैं, प्रतिध्वनियाँ हैं, घूमती हैं, और वे केवल राम सीता के मिथक को या आख्यान को सीधे सीधे शब्दों में नहीं रखती. वो जब किसी कविता की व्याख्या भी करती हैं और व्याख्यान भी देती हैं तो अपने पूरे लोकेल में धंसती हैं, जहाँ से वो आती हैं. बिहार का पूरा वैभव उनमें बोलता है. तो बल्कि मुझे लगता है कि अनामिका की कविता भी बोल बतकहियों का वैशिष्ट्य लिए होती हैं. वे बहुत संवाद, उनमें वो डायलॉग्स होते हैं और वो कहानियाँ होती हैं, उपकथन होते कथन. तो वो भी अपनी एक बात. लेकिन जब उपन्यास आपने डील किया है तो उपन्यास में एक पूरी कथा होती है, और कथा होती है, लेकिन कहीं कहीं चूँकि मूलतः वे कवि हैं, उनकी भाषा भी बहुत वर्तुल और बहुत घुमावदार है, इतनी आसान नहीं है. तो उस अर्थ में गुलजार साहब और यतीन्द्र दोनों एक बड़ी शख्सियतें हैं भाषा के अर्थ में. यतीन्द्र भी एक कवि हैं और गुलजार भी. तो जाहिर है कि सत्या जी के लिए अनुवाद काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा. मैं कठिन मुश्किल की बात नहीं, मुश्किल और आसान बनाना तो जैसे कहते हैं अनभ्यासे विषम शास्त्रम, शास्त्र विष के समान. अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है. तो इस अर्थ में आप अपने टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को सामने रखती, तो सत्या शरण जी के इस काम को आप किस तरह देखती हैं? क्या आपने, जैसे मैंने कहा, कि लगा कि आप मूल के गलियारे से गुजर रही हैं? 100%. ओके. क्योंकि ये जो मूल का गलियारा होता है, हम लोगों की सबसे बड़ी एक जो कहते हैं एक भ्रांति होती है कि जो ट्रांसलेशन है उसकी व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ लॉयल्टी ऑफ द ट्रांसलेटर. उसकी पहली लॉयल्टी है किसके तरफ, कहाँ है लॉयल्टी? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो प्रॉमिस इन्होंने यतीन्द्र को दिया कि तुम्हारी किताब को मैं ड्राई नहीं बनाऊंगी. दूसरा इनका प्रॉमिस था वो गुलजार साहब की तरफ कि भाई ये जो सेंस है मेरी वो लूज़ नहीं होगी, मेरे जो शब्द हैं, मेरी जो कहानी है वो कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे हाथों में सेफ है. आई थिंक दैट्स द सेम प्रॉमिस दैट आई मेड. तो मुझे वो बिल्कुल वही लगा. मुझे देखकर ये, मैं एक फिक्शन को ट्रांसलेट कर रही थी और यहाँ पर एक ये जीवनी को ट्रांसलेट कर रही हैं. लेकिन देखा जाए तृणधरी ओट भी सीता की जीवनी है वो, और उनकी खुद की ज़ुबानी है, आत्मकथा है सीता की. तो देखा जाए फॉर्मेटिवली, स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट, it's the same. It's identical in a way. One is a biography, the other is an autobiography in a way, but fictionalized. So आपकी लॉयल्टी तो सब्जेक्ट मैटर की तरफ भी है, और जो ऑथर है, चाहे वो यतीन्द्र हो या अनामिका हो, उन दोनों की तरफ है. और यतीन्द्र और अनामिका अपनी सेंसिबिलिटी, अपना एक कल्चरल रूटेडनेस, अपना एक कलर लेकर आते हैं अपने कैरेक्टर्स की तरफ. और मज़े की बात ये है कि गुलजार और यतीन्द्र में काफ़ी एक जो है सिमिलैरिटी है, वही अनामिका और सीता में काफ़ी, दोनों मिथिला की बेटियां हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है. तो अब वो वाली बात है. और सत्या जी के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग काम शायद रहा हो. मेरे लिए थोड़ा आसान इसलिए था कि सीता जो है वो मिथिला की बेटी हैं, अनामिका मिथिला की बेटी है, मैं ब्रिज की बेटी हूँ. तो ब्रज वाले हम मतलब वो वी आर एक्चुअली वर्किंग, वी आर ऑपरेटिंग इन द सेम कॉस्मोलॉजी इन दैट सेंस. एंड
also the mythological world that these characters inhabit. तो गुलजार साहब का भी अगर स्टैचर देखें तो वो एक डेइफिकेशन गुलजार साहब का अब हो चुका है देखा जाए तो। अब वो जीते जागते वो ह्यूमन बीइंग वो नहीं है, वो हाड़ मांस के पुतला तो बिल्कुल नहीं है। अब उनकी जो श्रेणी है वो देवताओं में आ चुकी है। तो अब उनके साथ डर लगता है उनको छूते में कि अगर आपने कुछ किया तो भाई कोई आके बहिष्कार कर देगा, बॉयकॉट कर देगा, आके उठ के गालियां देगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। Right, so it's the same as working with gods and goddesses. तो ये जो काम है, I mean, I really, मेरा सलाम है सत्या जी को कि जिस सेंसिटिविटी से उन्होंने जो हैंडल किया है और जो पोएटिक सेक्शंस हैं इसमें, पोएटिक सेक्शंस, इनक्रेडिबल, इट रियली इज़ इनक्रेडिबल। और क्योंकि मैं इस पैनल पे बैठी हूँ और क्योंकि ये मेरे साथ में है तो मुझे पोलाइट होना है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती, अदिति मुझे जानती है, मैं मतलब बिना लाग लपेट के लाओ लुप्पड़ के मैं बात बोल देती हूँ। सो इट रियली इज़ फैंटास्टिक। और ये पढ़ के बहुत मज़ा आता है कि भाई काम हो रहा है और बड़े अच्छे से हो रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और सवाल आपसे करने निशा जी, चूँकि अगर आप जाना चाहें तो कोई बाधा भी ना हो। ये बताएं कि जब हम किसी कवि को छूते हैं, उसकी शायरी को छूते हैं, उसके मिसरे को पढ़ते हैं, तो उसके रूपक, उसकी उपमाएं और उसके कहने का ढंग ये बिल्कुल गद्य की तरह नहीं होता, आख्यान और कहानी की तरह नहीं होता। कहानी में आसान होता है कि आप उसको नरेट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ कविता में कही जा रही है, जहाँ के बहुत सारे स्थल आए हैं जिनको गुलजार साहब ने कोट किया, जिनको यतीन्द्र ने कोट किया है, तो उन स्थलों को, खासतौर से शायरी के मिसरे को या त्रिपदी को या उनके चौपदे को जब सत्या जी ट्रांसलेट करती हैं और आप उसे पढ़ती हैं, तो जिस तरह से हम उसे पढ़ते हैं शायरी के उस मिसरे को, उस अंदाजे बयां, उस प्रभाव के साथ, और ये बिल्कुल आश्वस्त होते हुए कि 100% हम इस फील को दे रहे हैं, क्या वो फील आपको लगी? 100%, and I want to start with Ghalib's translation. Is it your translation? It's fantastic. Caged, yeah. All right. हाँ. It's right, fantastic, and it works so fabulously because वो अपने, अगर मिर्ज़ा गालिब का नाम हटा दें तो वो अपने आप में कविता है, वो अंग्रेजी की कविता है। बिल्कुल सही कर रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो एक दूसरे एक किसी कल्चरल, लिंग्विस्टिक, पोएटिक कॉन्टेक्स्ट से ट्रांसपोज किया है इंग्लिश में। इट डजंट फील लाइक दैट। कोई वायलेंस नहीं है, कोई सीम्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सलवटें पड़ी हुई हैं जो इन्होंने बहुत प्रेस मार के उनको ठीक किया है। सलवटें हैं तो हैं, मतलब उसको रहने दीजिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल दैट एवरी ट्रांसलेशन हैज़ टू, every translator has to make, कि should I iron out everything or should I retain the rough edges? You have retained the rough edges as well. आपने चीज़ों को मतलब अनकहा भी छोड़ा है कि वो रीडर का, क्योंकि फिर रीडर को भी अपना दिमाग लगाने दीजिए ना। You have invited the reader to delve a little further. You have invited the reader into this world कि भाई देखो, I have opened a window. इसके बाद में जहाँ, मतलब अब ये आपके ऊपर है, जहाँ आपकी जैसी आपकी श्रद्धा है, जहाँ आपकी निष्ठा ले जाए, चाहे वो किताब के प्रति है या यतीन्द्र के प्रति है या गुलजार के प्रति है। You have your own journey, and I think that is very important, and it comes across the best in those poetry translations. बहुत अच्छा। मैं सत्या जी को केस्ड में पढ़ रहा था, तो वहाँ भी चूँकि गुलजार हैं तो प्रसंग गुलजार का है। मैंने उसमें ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपके ब्रजभूमि को भी नमन और आपकी शिरकत के लिए बहुत धन्यवाद निशा जी। सत्या जी, मैं आपको पढ़ रहा था आपके ट्रांसलेशन में गुलजार को। एक छींटा है अश्कों का और धूप का झोंका है, उस जिस्म की मिट्टी में वो पौधा सुरों का है, और आवाज़ की टहनी पर अल्फाज कहीं रख दो, होठों की तरह उनके मानी खिल उठते हैं। आशा भोसले पर लिखा है उन्होंने। ये जो एक छींटा है अश्कों का, अब ये वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदी की और जो गज़ल की जो खुसूसियत है, उसकी शेरियत है, उसका तगज़्ज़ुल है,
उसका मीटर है, एक छींटा है अश्कों का और धूप का झोंका। ये इस तरह से जो उक्ति वैशिष्ट्य कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब एक खास विशेषता है। और गुलजार के यहाँ इमेजरी का भंडार है, ही इज पोएट ऑफ इमेजेस। तो जिस तरह से और उसे वो कनेक्ट करते हैं पूरी तरह से। धूप का झोंका है, आपको झोंका का अनुवाद करते हुए और छींटा का अनुवाद करते हुए बड़ी बड़ी मतलब सावधानी बरती आपने, क्योंकि जैसे कहते हैं धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, तो कहीं एक आध शब्द ऐसा लाउड ना हो जाए कि लगे कि वो, जैसे आपने बर्स्ट का इस्तेमाल किया वहाँ, मुझे लगा कि कोई शायद और शब्द नहीं मिला होगा। तो मैं इस मुश्किल को कह रहा हूँ कि हर भाषा की जो विशेषता है वो अनुवाद में कहीं कहीं वो चुनौती बन जाती, कहीं सीमाएं बन जाती हैं। अनुवाद चूँकि तमाम तरह के होते, लिटरेरी ट्रांसलेशंस, किसी दूसरे अनुशासन के ट्रांसलेशंस, और सब में उसके कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ उसकी खास अभिव्यक्तियाँ होती हैं, वो उसी में प्रकट होती हैं। तो मैं फिर भी आपने इसमें पूरी किताब में देख गया बहुत ही, ये जो गुलजार के आशार कहीं कहीं आते हैं, इनको पढ़ते हुए, चूँकि आप तो हिंदी में भी बहुत महारत रखती हैं, और जब आप ट्रांसलेशन आपने किया उस संसार के लिए, इसको पूरा विश्व पढ़ेगा उस अंग्रेजी डिक्शन के साथ, तो आपको आपके भीतर ये प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ के तहत संभव हुआ, या कुछ गुलजार को करते हुए कुछ गुलजारियत भी आपके भीतर आती गई? क्योंकि देखत तुम ही हो जाई, कभी कभी हम प्रेम करते हैं तो वैसा बन जाते हैं, राधामय हो जाते हैं, कृष्ण कभी कभी राधामय हो जाते हैं। तो मतलब ये जो गुलजारियत है, इसको अनुवाद करना संभव हुआ कि नहीं हुआ? कितनी आश्वस्ति है, जैसे प्रेम करके आदमी खुद अभिभूत होता है, जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है, जिसे अज्ञे कहते हैं। तो इस तरह से कैसे उस प्रेम से, उस मोहब्बत से गुलजार को जिस तरह से आपने अपने भीतर आत्मसात किया है, और अपनी भाषा में जो अंग्रेजी में उसे आपने तर्जुमा किया है, तो उसके प्रति जो न्याय का भाव है वो कैसा, पोएटिक जस्टिस जैसे होता है? I think because most of the people जिनके बारे में गुलजार साहब ने पोइट्री इस केज्ड में लिखे हैं, उनके बारे में भी मैं जानती हूँ। जैसे आशा जी को, तो आशा जी के गाने तो सुनते हुए आई हूँ, जिस दिन से मैं गाना सुनने लगी तो उनको एडमायर करती हूँ, वो मेरे लिए एक आइकॉनिक आइडल है। तो देयर वर ऑल दीज थिंग्स इन प्ले, कि एक तो गुलजार साहब एक तरफ है, और ये हैं जो जिन लोगों को मैं एडमायर करती हूँ, बासु जी, उनका बिमल रॉय जी, जिनके फिल्म्स मैं देख चुकी हूँ। सो आई थिंक दोज थिंग्स केम टुगेदर। सो अलॉन्ग विद द ऑ दैट आई फील फॉर देम and the magic of the language, so some kind of, what is it called, formula came out that made that happen. क्योंकि बड़े हिम्मत करके मैंने किया। पहले दिन जो बैठी मैं विद द फर्स्ट पोएम, मानिए ना माने, मुझे 2 दिन लगे 4 लाइन करने में। बिल्कुल। But little by little I got used to what is Gulzar Sahab saying. How is he saying it? How do I get under the skin of what he is saying? तो उनसे 1-2 बार मैंने फ़ोन भी किया, बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार और पढ़ लो बच्चू, तुमको समझ में आ जाएगा। तो फिर 2 बार और पढ़ी मैं। ऐसे अब 1 बार और फ़ोन करूँगी तो डांट पड़ जाएगी, तो और 2 बार पढ़ी। तो ऐसे ही आई स्टार्टेड गेटिंग अंडर द स्किन। आई लिसन टू हिज सॉन्ग्स, आई अंडरस्टैंड हाउ ही वर्क्स ऑन हिज वर्ड्स। तो आई थिंक आई वर्कड वेरी हार्ड। अच्छा सत्या जी, अब मैं आपसे फार्मली बात करना चाहूँगा कि एज ए ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेटर्स नोट होता है, जैसे किसी भी किताब पर आपका अपना नोट है, मैं उसे पढ़ नहीं पाया, मैं तो आप ये बताएं कि एक ट्रांसलेटर के रूप में इस पूरी किताब को ट्रांसलेशन के लिए स्वीकार करते समय क्या मन में था, और इस पूरी यात्रा को, इस पूरी जर्नी को कैसे एंजॉय किया, कैसे तमाम कामों के बीच, एक गृहस्थ होते हुए, एक लेखक होते हुए, संपादक होते हुए, इस चीज़ को कैसे संभव किया कि इस कंटिन्यूटी को, इस सातत्य को, इस निरंतरी को कैसे आपने टूटने नहीं दिया? आप इसके इस पूरी जर्नी ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द बुक। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फॉर मी लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन।
I never expected it would be given to me because I was not known as a translator. I do believe, I don't know whether it's, I'm right in this, Aditi, you would know whether Gulzar Sahab said de do because he was very happy with what I had done with Caged. He said, तुमने बहुत अच्छा काम किया अब और साथ में करेंगे, you know. बहुत अच्छा। तो I don't know, but मेरे लिए तो it was a gift from heaven. हाँ, तो ये बात हुई ना, नहीं तो मैं कहाँ से पहुँच गई इसके पास, तो इस किताब के पास। तो anyway, तो उसके बाद जब मुझे ये किताब हाथ में आ गया and I started reading it, I read sections of it many times so that I understand कि कहा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। और then I started working on it and I must say it took me 6 months because in the middle of all this I went to visit my sister. तो मैं इंग्लैंड चली गई, किताब लेके गई, मेरा आईपैड लेके गई, सब कुछ लेके गई और वहाँ भी रात को बैठ के मैं काम करती थी 1 घंटा कम से कम आफ्टर रोमिंग अराउंड द होल डे। तो except when we went really out to Wales or Lake District, I was working almost every day for 1 hour at least. तो ये था कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, I should try and bring it out in time for it to at least appear at one of the festivals. गुलजार साहब के लिए उतना तो करना पड़ेगा कि he should not lose the opportunity. तो मैंने ये सोच के किया कि ये मेरे लिए एक it's like carrying a torch forward. From Gulzar Sahab to Yatindra, to me it has come and it is my responsibility to nurture the torch and to take it forward. बहुत धन्यवाद। एक सवाल और आपसे करेंगे, जयंती जी को मुड़ेंगे कि ये जो रूपकों से और बिंबों से खेलते हैं गुलजार, उस खेलने को जब आप अनुवाद में अंतरित करती हैं तो कैसा लगता है आपको? बिंबों में इमेजेस जो क्रिएट करते हैं, जो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मैंने कहा नैरेटिव तो उसका ट्रांसलेशन ठीक है, उसको मैनेज कर सकती है। हाउ यू मैनेज the images of Gulzar in your translations? I think I have heard his song. I've listened to his songs forever. And Caged gave me the confidence. Caged gave me the confidence because when I would get stuck and we were sat together on those poems, and somewhere where I would get stuck, he would explain to me कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ. I'll give you an example. The first poem I did was on Sunil Bandyopadhyay, where he says, Kitab, the book is lying on its face, let it lie. The poet has gone to sleep. The sun came in and knocked. The wind came in and rustled. He did not wake up, but let the book be there, because he may wake up and continue reading. तो ये बात मैं समझी नहीं और मैंने कुछ और ही ट्रांसलेट किया था और उनको भेजा और मैं बोली तो उन्होंने कहा, when we met, he said, Sunil ji is not sleeping, he's gone. The moment he told me that, the poem fell into place. Okay. So there is a great contribution of the poet himself in the translation, because very often he would explain to me, even with the one he did on Hari Prasad Chaurasia, he says, suddenly he said, कि after the book had gone to edit and everything, he said, मुझे एक और add करना है. I was in the middle of some conference. And he said, आज ही भेजना है मुझे. And he said, वो एक गाना है मेरा सातों बार दिल पड़ोसी से. I said, मुझे मालूम है वो गाना, मेरे पास उसके words भी हैं. तो he said, बहुत अच्छा, तो कर दो translate. तो मैंने कर दिया. So at one point he said कि वो जो तुमने लिखा है लास्ट में, वो तुमने लिखा है वो बार बार जब कृष्ण की मुँह लगती है, she is not challenging him, she is defying him. So when he says, gives this small, sense of direction, the whole poem falls into place. बहुत अच्छा. एक कवि के साहचर्य से, एक फिल्मकार के साहचर्य से, जाहिर कि जहाँ आपको दिक्कतें आई उसको आपने किया. सत्या जी बहुत धन्यवाद. हमारे साथ आप जयंती जी यहाँ हैं पैनल में, बहुत स्वागत आपका. आपने इतने सारे उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, उसके बाद आप संपादक खुद हैं और जिस तरह की दुनिया में जिस तरह के भाषाई संसार में हम रह रहे हैं, जो हिंदी पत्रकारिता का दौर है, उसको आपने बड़े लंबे अरसे से देखा है, बहुत स्तरों पर काम किया है.
जो भाषा का स्तर आज हमारे समाज का है, उसी समाज के लोगों के लिए हिंदी की किताब आती है, और जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट होती है तो जाहिर उसका एक क्लास रीडर होता है। तो ये जो किताब लोकार्पित हुई है भी गुलजार साहब को जानने के लिए, ये क्लास रीडर के लिए है। आपको लगता है कि गुलजार जो आम लोगों के नायक भी हैं, उनके गीत होठों पर कोई चरवाहा भी गा सकता है, बीड़ी जले ले जिगर से पिया, और तमाम तरह के गीत ऐसे हैं जिसको सुनते हुए हम लोग उछल पड़ते हैं। हमें लगता है कि इस शायर ने किस तरह से इन चीज़ों को लिखा है और ऐसी दुनिया रची है। आप एक अखबार की संपादक रही हैं, खुद इतनी अच्छी कथाकार हैं, इतनी अच्छी उपन्यासकार हैं। जब आपने तो हिंदी भी पढ़ी है बेशक, सबसे पहले शायद हिंदी ही पढ़ी हो आपने, तो आपके ऊपर हिंदी का एक ऐसा खासा प्रभाव होगा, और ख़ुद आप तमिलियन हैं, तमिलियन है ना, तो आपको तो कहना ही क्या है। तो ये आज तो ये संसार हिंदी का बहुत समृद्ध हो रहा है, दूसरी भाषाओं से लोग आ रहे हैं तो अपने मुहावरे इसमें दे रहे हैं। आपकी हिंदी को पढ़ के नहीं लगता कि हम किसी तमिल भाषी व्यक्ति की हिंदी पढ़ रहे हैं। अभी मैंने देखा तेलुगु में भी और लोग हैं, वो जो लोग जीवनियाँ लिख रहे हैं और अपनी भाषा से इतर हिंदी में काम कर रहे हैं। आप जब इस अंग्रेजी ट्रांसलेशन से गुजरी, जिस पर हम लोग डिस्कशन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं, गुलजार साहब पर, तो इसे पढ़ते हुए कैसा एक पहला फील, जो पहलौठी वाला प्यार है और पहलौठी वाला प्रभाव है, वो कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। देखिए, शुरुआत तो मैं अदिति की बात से करना चाहूँगी। अदिति ने कहा कि गुलजार ऐसे पारस हैं जो जिस किसी को भी छू दें वो उनके रंग में रंग जाता है। आपने गुलजारियत की बात की तो मुझे लगता है हम सबके अंदर गुलजार है। मैं भी ऑफ कोर्स तमिल भाषी हूँ, बट पली बड़ी भिलाई में थोड़ा हिंदी का संस्कार वहीं से आया, पर हिंदी ऐसे विषय के तौर पे मैंने कभी पढ़ नहीं पाई। लेकिन शिकायत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में गुलजार थे। मुझे याद है मैं 5 या 6 साल की रही होंगी, तो भिलाई क्लब में मैंने एक फ़िल्म देखी थी, मेरे अपने। उनकी फिल्म है। 70 के दशक की फ़िल्म थी। तो उसके 2 गाने मेरी जहन में रह गए। एक तो हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, BA पढ़े या MA पढ़े, है ना, और कोई होता जिसको अपना हम अपना कहते, है ना, ये भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से ट्रांसलेट किया। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर गुलजार साहब का, और तमाम मतलब हिंदी फिल्मों का और साहित्य का, कि मैं जो है बाद में एक हिंदी पत्रकारिता में आ गई और साहित्य लिखने लगी। अब बात करती हूँ सत्य जी की। सत्य जी से भी मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। जब आज से 40 साल पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में बतौर प्रशिक्षु पत्रकार गई थी और धर्मयुग में नौकरी करने लगी, तो बिल्कुल हमारे बगल में सत्या जी बैठा करती थी। मैं उनसे 30 साल बाद मिल रही हूँ, और आप सबको बताना चाहूँगी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी 30 साल पहले की किसी खांचे में सत्य जी आज भी हैं। एक रत्ती का फर्क नहीं आया। जैसे तब दिखती थी, खूबसूरत, लंबी, उनके बाल, उनका ग्रेस, और कहीं ना कहीं हम सब जो ट्रेनी थे, हम सब बड़ी चौकन्नी आंखों से देखा करते थे। बिल्कुल तब वो वहाँ असिस्टेंट एडिटर थी, मेरे सामने वो फेमिना की एडिटर बनी। बाद में इन्हीं के वक्त पे ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जो है, हाँ, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स जो है, वो भी बनी। तो जब ये किताब मेरे पास आई, जब अदिति ने मुझसे कहा कि आप आइए और ये किताब मुझे उसे पढ़ने को भेजी, तो मेरे सामने 3 साल पहले का दृश्य कौन गया, जब हिंदी की किताब मैं पढ़ रही थी। बिल्कुल। और जिस दिन इस किताब का लॉन्च हुआ था जयपुर लिट फेस्ट में, मैंने वो वीडियो देखा, तमाम लोग भीड़ लगा के खड़े थे और ये किताब खरीद रहे थे। वो इतनी बड़ी आश्वस्ति थी कि एक कथेतर किताब जो है वो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, वो भी हिंदी में, और 2 साल के भीतर अनुवाद संभव किया इन्होंने। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग उस वक्त लाइन में लग के किताब ले रहे थे, गुलजार साहब और यतीन्द्र जी के साइन ले रहे थे, उनमें सारे के सारे देवनागरी से बहुत देवनागरी पढ़ने के बहुत अभ्यस्त नहीं थे। क्योंकि देखिए, हम आज उस समय में रहते हैं जहाँ देवनागरी जो है, मैं ये नहीं कहूँगी देवनागरी ख़त्म है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती। इतने बड़े करियर के बाद मुझे हिंदी से बहुत लगाव है भाई। मैं तो कहूँगी कि मातृभाषा तमिल है, मेरी कर्म की भाषा हिंदी है, और हिंदी को आगे बढ़ाने में हर समर्थ कोशिश भी करती हूँ मैं। लेकिन सच यही है कि आज जितनी भी युवा पीढ़ी है, जो भी आज जनरेशन Z है, वो उनको देवनागरी पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन वो गुलजार साहब को उतनी ही शिद्दत से चाहते हैं।
भाई मुझे बताइए ना, मैं अगर अपनी ज़िंदगी के मोड़ की तरफ देखूं, हर मोड़ में रहे हैं भाई वो। बचपन में अगर वो रहे हैं, फिर आंधी देखी, फिर मुझे लगता है कॉलेज की किसी कोने में मैं कभी बैठी होंगी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। मुझे बताइए ना, आपको उनकी कविताएं, उनकी नज़्म पूरी तरह समझ न आए तब भी वो अपने लगते हैं, तब भी वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा लगता है। आपको लगता है आपकी यात्रा उनकी नज़्मों से, उनकी कविताओं से आगे बढ़ रही है। और फिर परसों जब ये किताब मैंने उठाई, अब आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो हिंदी चूंकि मैं पढ़ चुकी थी, मैंने उसे पूरी तरह से इरेज कर दिया। मैं ये पढ़ने बैठी, मैंने आज आते ही सत्य जी को कहा कि आपका अनुवाद एकदम मखमली है। मैं जब पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मूलतः अंग्रेजी में ही किताब लिखी गई है। इसमें कहीं मुझे कोई झोल नज़र नहीं आया, कहीं मैं पुरानी किताब के पन्ने पलटा के रेफरेंस नहीं देख रही हूँ, बल्कि मुझे अच्छा ये लगा कि इन कविताओं के जो भी मैंने जो कुछ पन्ने मोड़े होंगे, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कौन सी कविता है, बताइए। आई एम नॉट एंग्री विथ यू लाइफ, आई एम एग्जैस्परेटेड, योर इनोसेंट क्वेश्चन मेक मी एंग्शियस। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। मुझे बताइए ना, इतना प्यारा ट्रांसलेशन। मैं कविताएं, मतलब बाकी मैंने कुछ छोड़ा भी हो तो मैं ट्रांसलेशन नहीं छोड़ रही हूँ बिल्कुल। हाँ, सारी सारी बिल्कुल। थोड़ी सी बेवफाई का ये है, अपार्ट टुडे विथ नो फियर ऑफ द मॉरो, लाइफ इज नॉट दैट शॉर्ट। पूरा मतलब आपके जहन में वो पूरी हिंदी की कविता का गाना गूंज जाता है बिल्कुल। हाँ, और मेरी प्रिय कविता जो मैं अभी बता रही थी, वी आर टिप टॉप, एवरीथिंग इज ए ओके, वी हैव ए BA, वी हैव एन MA, व्हाट फॉर वी से, देयर आर नो जॉब्स टू बी हैड, बट विथ योर ब्लेसिंग एवरीथिंग इज ए ओके। मुझे बताइए, इतना मज़ेदार है ये, अपने आप में ये पूरी कविता है। Jayanti ji, I'm going to interrupt you here. Yeah, sure. This particular one especially, which you're appreciating, I want to take the name of Anurag, who's sitting here, my editor. He worked on this. I would have never used the term A-OK. Oh, That's such a young term. I know, total Gen Z, yeah. So I think editors are also to be recognized and given their due. Yes. And yes, he did help in some of the Oh, poems. lovely. मतलब I freaked out when I read this. मुझे लगा वो तो मुझे पसंद ही है, पर ये तो एकदम ही बल्ले बल्ले है, बिल्कुल। तो ऐसी तमाम बहुत सारी आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये जो प्रोज है अंग्रेजी में लिखे हुए, वो आपको अपना बनाते चलते हैं। और जैसे निष्ठा ने थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ, मुझे ये भी सोचने में मज़ा आया कि अच्छा, तो फिर हिंदी में ये कौन सा गाना था। तो देखिए, आज के ज़माने में जब हम मान के चल रहे हैं कि जेन ज़ी जो है वो देवनागरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, महानगरों में अब सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, SMS की भाषा इंग्लिश है हर जगह, तो ये जो किताब है इसकी जनता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गुलजार हम सबके अपने हैं। और गुलजार जी बेशक इस साल 92 साल के हो जाएंगे, पर उनकी कविताओं में, उनकी नज़्मों में कहाँ से लगता है कि वो आज की बात नहीं करते। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, वो आज के समय की बात करते हैं। ऐसा लगता है जब वो आज कुछ भी नज़्म या गज़ल लिख रहे हैं, मतलब बीड़ी जलाई ले तो करिए, खैर 10 साल पहले की बात है, अभी की भी मैं अगर कोई बात उठा लूँ, ऐसा लगता है कि वो आज के युवाओं की बात कर रहे हैं। और ये जो गाना आया था मेरा, खैर वो तो मेरा चैनमैन, उन्होंने ही तो लिखा है ना, बिल्कुल, कजरारे। तो कजरारे तो ये लिखने के बाद उनके मन में शंका थी कि शायद मैंने गलत किया, लेकिन मैंने कहीं उनके इसी में पढ़ा था या उनका इंटरव्यू देखा था, तो मेघना ने उनसे कहा कि मतलब पापा आपको क्यों अफसोस हो रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस गाने में। बोले नहीं, मुझे लगता है मुझे नहीं लिखना चाहिए, शायद लिखते लिखते कहीं ना कहीं बल्ली मारा, और हमारी प्रिय दिल्ली की बात जब वो करते हैं तो मज़ा आ जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगले दिन सुबह चाय वो अपनी बेटी के साथ पी रहे थे, बालकनी में खड़े थे, नीचे से एक ऑटो वाला गुजरा और उसमें ये गाना बज रहा था। तब उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि बस मैंने ठीक किया, मैंने गलत नहीं किया। तो ये गुलजार साहब की ताकत है, और सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी ताकत है। ये हमारे लिए भी गर्व
के पल हैं, गर्व का समय है कि हमने उस समय में जन्म लिया, हमने उस समय में यात्राएं की, जिंदगी की, जिस समय में गुलजार हैं अपनी तमाम कविताओं, नज़्मों के साथ, अपनी बातों के साथ, अपनी फिल्मों के साथ। आप बताइए 90 के दशक में जब इतनी खराब फिल्में बन रही थी और मैं मुंबई से दिल्ली भाग आई थी, उस वक्त उस दौर में उन्होंने बनाया था चप्पा चप्पा चरखा चले। मुझे बताइए उस फिल्म को देखकर मुझे यकीन हो गया कि नहीं, अच्छी फिल्में बनती रहेंगी। गुलजार है, उनके बाद उनके बेटे तुल्य विशाल हैं जो अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। तो एक विश्वास भी तो दे रहे हैं वो, और ये विश्वास जो है वो भाषा नहीं मांग रही। हाँ, मतलब अंग्रेजी दार लोग भी जाके हिंदी फिल्में देख रहे हैं, आज भी उनके गाने सुन रहे हैं। तो ये किताब एक बहुत बड़े उस वर्ग के पास जाएगी जो अंग्रेजी में गुलजार को समझना चाहते हैं। और इसके लिए मैं गुलजार साहब, यतीन्द्र जी के साथ साथ सत्य जी को भी बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसी भाषा में लिखा है जो पढ़ते समय आपको भाषा की, क्या कहना चाहिए, भाषा की सीमाओं से कहीं दूर, पढ़ते समय आप भाषा को लांघते हैं, भाषा आपके दिमाग में नहीं रहता, आपके दिमाग में सिर्फ गुलजार, उनका बचपन, उनका संघर्ष, उनकी रूमानियत, चांद के प्रति उनका ऑब्सेशन, और यही सब रह जाता है। बिल्कुल। अच्छा जयंती जी, ये बताइए कि अभी जो आप कह रहे हैं कि वो तो कवियों की कोई भाषाई सरहद नहीं होती, हम विश्व के तमाम कवियों को अपनी भाषा में पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं और अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं। एक बड़ा संसार खुलता है, शेक्सपियर को या ब्रेख्त को, नेरूदा को कैसे पढ़ा हमने, इसी तरह से पढ़ा, हम जान पाए कि वो अपनी भाषा में किस तरह कहते रहे होंगे, हमने फील किया उसे। या टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, तो नेरूदा किस तरह से लिखा होगा उस पूरी कविता को। तो हमारा कहना है कि क्या ये अनुवाद की जो खिड़की है, ये दौर अनुवाद का है, और इसमें एक किसी शायर को तमाम भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चूँकि अभी जो गूगल का प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट का जो एक प्रभावी विस्तार है, उसमें जाहिर है कि तमाम भाषाओं की अपनी उपयोगिता है। वे भाषाएं हमारे मोबाइल पर दर्ज हैं, अगर हमें उस भाषा में कोई साहित्य मिलता है तो हम उसे उसी तरह पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे थे कि मैं पिछले दिनों मैसूर गई थी जी। मैसूर लिट फेस्ट में, मतलब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ मेरे जीजाजी गए हुए थे तो उनके साथ में गई थी। तो वहाँ पे मैंने स्टैंड में गुलजार साहब की कविताओं का कन्नड़ अनुवाद देखा जी। तो जब मेरे जीजाजी ले रहे थे, मैंने कहा आप क्यों ले रहे हैं? बोले कि आई कांट रीड हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, बिल्कुल बिल्कुल, सो लेट मी रीड इट इन कन्नड़ा। मुझे इतनी अच्छी बात लगी, और उस दिन रात भर वो कन्नड़ में सुनाते रहे, फिर मैं हिंदी में उसका तर्जुमा और उनको गा के सुनाती रही कि ये गाने जो मैं इनके साथ ये कर रही थी। तो वो मैं तो सिर्फ कन्नड़ का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने देखा अपनी आंखों से। तो देखिए, गुलजार साहब के कद के जितने भी कवि हैं, चाहे वो बाहर के हो या यहाँ के हो, हर भाषा में उनका अनुवाद होना चाहिए। इससे साहित्य जो है वो बहुत समृद्ध होती है, और साहित्य अगर समृद्ध है तो मुझे बताइए, आप आगे की पीढ़ी देखिए ना, साहित्य का काम तो यही है इंसान में इनको थोड़ा सा और इंसान बनाना, इंसानियत है ना, जो हम जिसके लिए गुलजार के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने। लगे हाथ ये भी बताइए कि ये जो कथेतर गद्य का लेखन है, जो जीवनी में, आत्मकथाओं में, संस्मरणों में आ रहा है सामने, उसका अपना जो साहित्यिक मूल्यांकन है वो किस तरह होना चाहिए? जो साहित्य के मूल्यांकन की मुख्य धारा है, ये जो इतने प्रयत्न हो रहे हैं, उनको किस तरह से आप आंकती हैं? जी देखिए, इसका जो जवाब है वो अदिति ज़्यादा अच्छा दे पाएगी, पर बतौर संपादक या बतौर लेखक मैं ये जानती हूँ कि आज का दौर कथेतर का है। अदिति सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि कथेतर किताबें इतनी ज़्यादा बिक रही हैं। अब जो है आज का जो भी पाठक है बहुत स्मार्ट हो गया है। देखिए, अगर आप उसे उस तरह की चीज़ें पढ़ने को नहीं देंगे आप जैसा वो चाह रहा है, क्योंकि इतनी उपन्यास, इतनी कहानियां लिखी जा चुकी हैं कि मुझे लगता है सैचुरेशन आ गया है वहाँ भी। और कथेतर की दुनिया जो है वो बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक पाठक की दुनिया को भी बहुत विस्तार देता है। बिल्कुल, और कथेतर पढ़ने में बतौर पाठक में कहूँ तो बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं जो सवाल और जवाब पढ़ रही थी गुलजार का, हिंदी में पढ़ रही थी या अंग्रेजी में? जैसे यतीन्द्र के सवालों पर क्या कहना है? हाँ, कैसे खोद के निकालते हैं कि नानक को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, में भी मैंने या मीरा
की पटकथा या जो भी जी। मतलब जबरदस्त। हाँ। ऐसे ऐसे सवाल निकालते हैं, फिल्मों के पीछे जाते हैं, गानों के पीछे, एक एक शब्द हाँ, के उसका पीछे, सीक्वेंस क्या रहा इस दोस्ती गीत के पीछे, मतलब बहुत सुंदर सवाल। मुझे तो लगता है यतीन्द्र जी ने बहुत मेहनत की है, और कितनी सहजता और सरलता से वो सवाल पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो लगता है अच्छा ये सवाल भी हो सकता था। मतलब देखिए, हम लोग तो जिंदगी भर बतौर पत्रकार यही करते हैं ना, सवाल ही बनाते रहते हैं। तो ये सवाल जो है वो ऐसे हैं जिससे पन्ना दर पन्ना गुलजार साहब की पूरी जिंदगी जो है धीरे 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 हमारे सामने आती रहती। वो भी आप देखिए कितने कितनी खूबसूरत तरीके से, आप पढ़ने के बाद आपको लगता है उनकी यात्रा या उनकी जिंदगी में आप भी कहीं शामिल रहे हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना। चाहे वो कविताओं या नज्मों में जो शब्द लेते हैं, बल्कि अभी मैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रही थी ओम जी, जिसमें वो बात कर रहे थे दिल्ली की, कि दिल्ली में इतने सारे रेखता और इतने सारे उर्दू के प्रोग्राम होते हैं, तो कहते हैं दिल्ली अब मुझे राजधानी जैसी लगने लगी है। क्या बात। तो मुझे ये सुन के बड़ा गर्व हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे दिल्ली से जरा और मोहब्बत हो गई। तो ये काम अगर कोई कर सके शायद, तो क्या ही बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं कभी IIC में कोई कार्यक्रम देख रहा था, अहमद फराज जी आए थे और शायरी पढ़ रहे थे, लंबे चौड़े थे, और उसमें गुलजार जी भी उसमें पढ़ रहे थे। गुलजार को कैसे अपनी शायरी में लाते हैं, एक शायरी सुनाई, एक शेर सुनाया उन्होंने कि कुछ खूबसूरत स्त्रियां थीं, उस तरफ हाथ करके कहा अहमद फराज साहब ने कि देख कर उनके रुखसारो लब यकीन आया कि फूल खिलते हैं गुलजार के अलावा भी। इस हाथ को उस तरफ क्या किया बात। कि फूल खिलते हैं गुलजार के अलावा भी, देख कर उनके रुखसारो लब। तो ये बड़े शायर जो हैं, ये कैसे मतलब अपनी शायरी में उस पूरी संस्कृति को, पूरे व्यक्तित्व को समाहित कर देते हैं। और ये मैं ज़रूर अब सत्या जी की ओर मुड़ना चाहूँगा कि ये जो सौंदर्य बोध, जिसको एस्थेटिक सेंस कहते हैं, एस्थेटिक सेंस, बिकॉज एक शायर से बात हो रही है, फिल्म जैसी विधा के लेखक से बात हो रही है, अच्छे गीतों के रचयिता से बात हो रही है, यानी वो एक ऐसा संसार रच रहा है जो इस संसार से थोड़ा अलग है, रोमांचकारी है, वो विशिष्ट है। उस दुनिया का रचयिता वो है। गुलजार हैज़ क्रिएटेड दैट वर्ल्ड। उस वर्ल्ड में उसका जो एस्थेटिक सेंस है, सौंदर्य बोध है, वो कैसा लगा आपको कुल मिलाकर? यू आर रीडिंग गुलजार एज ए पोएट, एज ए फिल्म मेकर, तो आपको कैसा लगा सत्या जी अनुवाद करते हुए? देखिए, मैं गुलजार साहब को काफ़ी सालों से मेरी पहचान है, मतलब सुपरफिशियल पहचान। आई यूज्ड टू गो एज ए रिपोर्टर टू इंटरव्यू हिम जब बॉस्की इतनी सी थी, और वो पेंटिंग्स बना के वो चिपका रहे थे कि देखो मेरी बेटी ने क्या बनाया। सो सिंस देन आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विथ हिम, और आई हैव बीन वॉचिंग हिज फिल्म्स, आई हैव बीन लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स, and yesterday I did a program on radio where I chose a song of Gulzar, and I said the first time I noticed Gulzar as a lyric writer was in Machis, when he writes Chhod Aaye Hum, when he says जहाँ उनके पैरों के कमल गिरते हैं, जहाँ नदी कमर के मोड़ से मुड़ती है, you know. So I said, wow, I mean, this is imagery, this is the kind of similes that only John Donne has done in English. Yeah. Nobody else has done it. So I started noticing, I started realizing that this is a poet I want to know more of, because in my own small way I write poetry. So I know it's not for public view, but I write poetry. So I felt this is something that it can inspire me to write better. So I started listening to him. I started watching all his films. तो थोड़ा सा वो रहा कि आई नो समथिंग अबाउट दिस मैन एंड हिज वर्क. सो जब उनके ऊपर ये सब, when he starts talking on the various films, he starts talking on the various lyrics, it was not new to me. And in some cases I even sat and watched the films again, कि ये कह क्या रहे हैं, what is he asking, what is his comment, is it justified? If not, I would have called him up and said, Yatindra, I don't agree with you. You know? So I did my own little research while I was translating. So, you know, thank God to iPads and thank God to Wi-Fi, you can watch a film anywhere. So on planes, I would watch films.
So things, I've done my little bit of research, and I felt that I was getting to know. In fact, I once messaged Gulzar Saab saying, I'm living your life for you. I'm living your life these days. And it is my habit that when I write about a particular, I write a biography, I live in that biographer's, subject's life. Like when I was writing on Jagjit Singh, I only listened to Jagjit Singh. When I was writing on Hariji, I attended every concert I could, wherever it was. I went to his Gurukul in Bhubaneswar. I stayed there. I went and visited the Gurukul. I listened to his students. I watched how his students teach other students. I try and get the essence of the person. So I did that in a kind of oblique way, even with translating this book. So I think that helps. That helps. अच्छा सत्या जी, आपने बहुत सारी बायोग्राफीज़ की हैं जगजीत सिंह पर, और बहुत सारे लोग आपके फेहरिस्त में होंगे। ये जो एक यूनिकनेस है, जो ट्रांसलेटेबल है कितना, ये आप समझती हैं, वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ में जो ख़ास बात आप पाई, चाहे वो गायक हों, चाहे संगीतकार हों, वो लेखक हों, कवि हों, जिनको भी आपने डील किया या जिनको क्या पढ़ती रही हैं, गुलजार साहब की यूनिकनेस क्या है, अद्वितीयता क्या है जो उनमें है तो औरों में नहीं है, और वो है, वो तो हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति अलग है अपनी अभिव्यक्ति में। एक ही वाक्य को 3 आदमी 3 तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसमें 100 में 100 नंबर के पाने की बात नहीं, अभिव्यक्ति की बात है। तो ये बताएं कि इस यूनिकनेस को आपने कितना महसूस किया, जो उनका अकेलापन है अपनी रचनात्मक क्षमताओं में, अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों में, उस अकेलेपन को, उस अद्वितीयता को, उस यूनिकनेस को आपने किस तरह से संभव किया या किस तरह से महसूस किया? I think in reading the poems, I mean, I started it happened when I was doing Caged. I would love for you to read one of the poems and me to read one of the translations, because the essence of Gulzar is in those poems where he's talking of a third person. कि 4 लाइन में उन्होंने किसी पूरे लाइफ को उतार लिया, जैसे ओमपुरी के बारे में उन्होंने लिखा है, या फिर पंचम के बारे में जो उन्होंने लिखा है. they sear you. आशा भोसले के बारे में भी कितना अच्छा लिखा है. आशा भोसले के बारे नो, पर जो इन लोगों पे उन्होंने लिखा है ना, I told him, I said, पढ़ के मुझे तो I feel उदासी, because he's written it with so much of emotion and all contained in 2 paragraphs, 2 stanzas. So I think that is where I realized the depth of the writing of Gulzar Saab. Afterward, this was easy. Yeah. Because once you have caught that spirit with which he's writing, and you've caught the mood behind how he approaches something, then it's not so difficult. हाँ, ये भी अच्छा है कि गुलजार साहब के मूड, मन तो हर एक का हर क्षण बदलता रहता है, मन तो मौसम सा चंचल है सबका होकर भी न किसी का, लेकिन गुलजार साहब मूड्स और मिजाज के कवि हैं। वे कब क्या सोच रहे हैं वो अपनी डार्क रूम में अपने, लेकिन उस मूड्स और मिजाज को, उसको पकड़ना उनकी अपनी भाषा में जिसमें वे कह रहे हैं, और उस भाषा में ले जाना बिल्कुल उसी तरह से अक्षत, यानी बिना नष्ट किए उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसकी प्रतीति को, उसकी अनुभूति को। ये जब आपके सामने ये चुनौती आती रही होगी, अगर वे केवल नैरेटर होते, गद्य में अपनी बात कह रहे होते, बिना रूपक के, बिना मेटाफोरिकल यूजेस के, तो शायद आपके लिए आसान होता और सबके लिए भी आसान होता। वो तो गूगल भी ट्रांसलेट कर देता, लेकिन जो काम गूगल नहीं कर सकता, या सोशल मतलब इस ट्रांसलेशन के प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं होते, वही मनुष्य करता है। तो वो उस चीज़ को, उस मूड्स और मिजाज को ट्रांसलेट करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। कि आपको लगा कि मुश्किल तो है, लेकिन इसको पार करते हैं? बिल्कुल, challenges I like. I like challenges. So, for example, I started trekking after I crossed 50. And I went to Pindari Glacier twice. तो I mean, क्या बात, चलिए वो साहस तो आप में है। So I think वो तो था कि मैं कर लूँगी, और पूरा नहीं कर पाऊँगी तो गुलजार साहब तो है, हेल्प करेंगे मुझे। So he's a very good mentor. बहुत पेशेंट है, कभी कभी चिढ़ जाते हैं। हाँ, ये जो कभी कभी कह रही हैं, क्या ज़्यादा तो नहीं है?
कभी कभी चिढ़ जाते, नहीं मेरे साथ कभी कभी ही हुआ। अच्छा जी। जब उनको लगा कि मैंने पूरी लगाव के साथ काम नहीं किया, जल्दबाजी में किया, सुहेल से थोड़ा जल्दी में कर लिया ना तुमने, फिर से कर लो। ओह क्या बात फिर है। से यानी इसका मतलब कि वे इस बात से आश्वस्त हैं, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू योर बेस्ट। Do it again. Yeah. So do it again. So he did that with 2 poems. फिर मैं भी बैठ के मैं समझाई कि मैंने जल्दीबाज भी नहीं किया. I think I'm right. I convinced him. So there is that give and take he's open to. ओके। He's open to, which is good. You know, I mean, he doesn't say कि मैंने जो कहा यही ठीक है. He's open to understanding. Of course, if I'm wrong, he will correct me. ट्रांसलेशन करते समय जो कठिनाइयाँ आपको आती रहीं, जो महसूस होता रहा कि आप अपनी भाषा के साथ न्याय कर सकें ट्रांसलेशन के साथ, तो जीवनी लिखने में यतीन्द्र को बड़ी कठिनाइयाँ आई। मुझे पता है कि कभी गुलजार साहब से समय नहीं है, एक लंबा वक्फा रहा, और जाहिर कि मतलब ऐसे कामों में जहाँ कि कोई कोना भी ऐसा न छूटे जहाँ लगे कि कुछ कमी है जो हम बना सकते हैं। तो क्या आपको लगा कि गुलजार साहब उस समय अवेलेबल हैं जिस समय आपकी ज़रूरत है ट्रांसलेशन के लिए? नहीं, मैंने रोज उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जब पूरा काम या हो इस चुका मायने था। में कभी आपने यतीन्द्र से संपर्क किया कि आप क्या कहना चाहते हो और उन्होंने क्या कहा, जरा मुझे समझाइए। नहीं अच्छा। नहीं, मैंने यतीन्द्र से नहीं किया कुछ, बिकॉज वो तो अवेलेबल नहीं है इजीली। उनको मैसेज करो तो जवाब कभी कभी आता है। तो 1-2 बार मैंने उनको मैसेज भी किया था कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, पर जवाब नहीं आया। तो मैंने ठीक है, मैं अंडरस्टैंड ही कर लूँगी कैसे भी। तो 3-4 बार पढ़ी तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ ही गया। अच्छा, अभी जैसे निशा जी बता गई कि वो ब्रज की हैं, जयंती जी बता गई कि ये तमिल की हैं, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता के हल्के में काम किया है। हम तो ये मानते हैं कि जिसके पास कोई स्थानिक भाषा है, ब्रज है, अवधी है, मगही है, मैथिली है, उसका जो भाषाई तेवर है, जैसे गे भी हमारे हिंदी में बहुत मॉडर्न राइटर कहे जाते हैं, लेकिन उनके भीतर भी जो भाषाएं आती हैं, अवध की आती है, या जहाँ जहाँ उनके पिता तैनात रहे वहाँ से भाषा पकड़ी उन्होंने, तो वो चीज़ें हमारी खड़ी बोली को भी समृद्ध करती हैं। अंग्रेज़ी को भी शायद इस तरह की जो भाषाएं होती होंगी समृद्ध करती होंगी। अफ्रीकी कविता पढ़ें तो वहाँ स्वाहिली लैंग्वेज, लोक भाषाओं में पगे जो बिंब हैं वे आते हैं, और वो तो या आपको लगा कि जो वो लोक धुनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चन जी करते हैं, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, या महुआ के नीचे मोती झरे, सर गुलजार जी भी बहुत सारी धुनें लोक से ले आते हैं, चूँकि फिल्मों में उन्हें बरतना है और उसे जनता के बीच जाना है। वो चाहे किसी एक भाषा की लोक धुन हो, लेकिन उसे पूरे जगत में उसे फैलाना है। तो उन लोक धुनों के साथ जब आप ट्रांसलेशन कर रही थी तो कैसा लगा? क्योंकि आपकी अपनी भाषा भी तमिल है और अच्छा, आप भी ये मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ कि जी। मैं तमिल बहुत कम बोलती हूँ। तमिल मेरे कम हस्बैंड यूपी के हैं और रह चुके हैं नागपुर में, तो हम हिंदी और इंग्लिश घर में बोलते हैं। हाँ, फॉर्चुनेटली फॉर मी, माय सन स्पीक्स तमिल, ओके, माय डॉटर इन लॉ इज गुजराती, या माय ग्रैंड डॉटर को हम ना गुजराती सिखा पाए ना तमिल सिखा पाए, अभी कोशिश में है। यानी मल्टीलिंगुअल। हाँ, तो तमिल बहुत कम मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो मैं तो असम और कलकत्ता में, ओके, तो ओके। बंगाली पहले मैंने सीखा। अच्छा, बिफोर एनीथिंग एल्स आई न्यू बंगाली एंड हिंदी एंड इंग्लिश लेटर, एंड देन बट आई थिंक इन इंग्लिश, सो फॉर मी इंग्लिश इज माय फर्स्ट लैंग्वेज। So for me, everything gets distilled into English, whatever I read. जब आप रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर लिखी गुलजार जी की कविता अनुवाद कर रही थी, जिसमें वो एक बांग्ला का पद भी उल्लेख करते हैं, वो बांग्ला में कुछ उसको कहते हैं, तो उस कविता को पढ़ते हुए कैसा लगा जब आप बंगाल और असम से जो रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता केज्ड में है, जी 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 जी, पहली शायद कविता है, हाँ हाँ, वो गुड़ वाला, तो जोल पौड़े, तो कहते हैं ना कुछ, हाँ हाँ, वो तो it is familiar for me. It is familiar for me. I have done his plays as a young girl. I have taken part in his plays. I have sung those songs. तो अच्छा, एक चीज़ सत्या जी बताइए कि चूंकि वो कवि हैं, शायर हैं, मैं तो इसी रूप में लेता हूँ, तो कवि और शायर कभी कभी रूहानी और अध्यात्म, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा इन पर है। वो जो सोच रहे होते हैं उस सोच का एक सिरा रूहानी आध्यात्मिक होता है,
हमारे यहाँ लोग कहते हैं कविता जो है भाषा का अध्यात्म है, शायरी भाषा का अध्यात्म है, मेडिटेशन। तो क्या आपको ये लगता है कि इस तरह का जो रूहानीपन है गुलजार जी के साथ जो है उसको ट्रांसलेट करने में आपको कैसा लगा? उस भाव को, अध्यात्म मेडिटेशनल जो भाव है, स्पिरिचुअल, अभी मैं और एक किताब स्पिरिचुअल जो उनके एक्सप्रेशंस हैं। नहीं, मैं उनके साथ और एक किताब कर चुकी हूँ अभी जी। 215 poems he has given me। हाँ। उसमें बहुत सारे ये हैं। वो खुद जो कविताएं पसंद करते हैं, जैसे वन डे वन पोएम किया, तो बहुत सारी चीजें वो हाँ, लोगों वो की तो लाते हैं। अलग है, पर इसमें जो नए वाले किताब में बहुत सारे मेडिटेशनल पोएम्स हैं। बहुत मुश्किल टू अंडरस्टैंड जी। व्हाट ही इज टॉकिंग ऑफ, बिकॉज ही इज टॉकिंग ऑफ द कॉस्मोस, बट Cosmos। एक्चुअली ही इज टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स। उस ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं हाँ, वो कॉस्मोस, और वो बोल रहे हैं मैं तारों के बीच घूम रहा हूँ और सूरज को पकड़ के ला रहा हूँ, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। अच्छा, मैं जयंती जी की ओर लौटता हूँ कि जैसे अनुवाद में प्रायः हम कहीं कहीं पैराफ्रेजिंग करते हैं। जी। जब हम कविता को उसी लय और मीटर में दुरुस्त नहीं कर सकते जो अंग्रेजी में भी मीटर पोइट्री लिखी जाती है, तो हम उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। तो ये पैराफ्रेजिंग ट्रांसलेशन में कितना महत्व रखती है? बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने जैसे पेंगुइन की ही बहुत पहले इटालियन वर्स और स्पेनिश वर्स पढ़ा है, इसमें उंगारेत्ती और मोंताले, बहुत सारी कविताएं, वो सब पैराफ्रेजिंग है। जी। वो उस भाषा में अनुवाद शायद नहीं हो सकती, इसलिए पैराफ्रेजिंग, उससे पता चल जाता कवि क्या कहना चाहता है। जी, बिल्कुल। तो ट्रांसलेशन में इसकी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है? देखिए, जब आप इन कविताओं को पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट कविताओं को पढ़ रहे हैं, चूंकि मैं हिंदी में मैंने पढ़ रखा है और आपको पता है गुलजार ने मूलतः उर्दू में ही लिखी है कविता, उर्दू में लिखी है। तो कहीं ना कहीं से इसकी आत्मा को आप पकड़ लेते हैं कि इसका एसेंस वही है। लेकिन अंग्रेजी में देखिए, मीटर बेशक वो ना हो सकता है ये कविताएं जो ट्रांसलेटेड हुई हैं उनको आप उस धुन में गाना चाहें तो शायद न गा पाए, बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पोइट्री है, वो नज्म नहीं है, तो आप उसको उस तरह से स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ अगर आप कविताओं का तर्जुमा कर रहे हैं तब तो आपको पैराफ्रेजिंग और इन सब का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, पर इस तरह की किताब में आप थोड़ी सी स्वतंत्रता, लिबर्टी उठा सकते हैं। बिल्कुल, आपको वर्ड टू वर्ड जरूरत नहीं है, आप बस एसेंस या आत्मा को पकड़ लीजिए। एसेंस। जी। मैं तो कहता हूँ जैसे कि गुलजार जो है नज़मों के शायर हैं। जी। गज़लें भी हैं, उनके शेर भी मुख्तसर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुल मिला के नज़मों के शायर हैं और नज़मों में एक ऐसी लंबी सांस लेते हैं वे, जैसे हम अपने यहाँ हिंदी में गे को पढ़ते हैं, मुक्तिबोध को पढ़ते हैं और बहुत सारे कवियों को पढ़ते हैं। तो ये जो उनका मेयार है एक शायर के रूप में, उसको आप पटकथा लेखक और संवाद लेखक से किस तरह से अलग हटके देखती हैं? क्योंकि नज़मों में जो वैचारिकी है, जो उनका आइडियोलॉजी है, वो काफ़ी खुल खिल के प्रकट होती, जहाँ पर छंदों की बंदिश भी नहीं होती, बंदिश से मुक्त। तो क्या सोचती हैं? देखिए, गुलजार का मैं एक बहुत काफ़ी पुराना इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसमें वो उन्होंने लिखा कि जब मैं फिल्मों के लिए लिखता हूँ, खुद अपनी ही फिल्मों के लिए लिखता हूँ। देखिए, हिंदी फिल्मों में आप ये अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, पहले धुन तैयार करते हैं और धुन के हिसाब से आपको उस मीटर में आपको लिखना पड़ता है, नज़्म लिखें, कवि जो भी लिखें आप। तो उनका ये मानना था कि हाँ, कई बार मैं अपने को बहुत ज़्यादा खोया हुआ महसूस करता हूँ, मैं शायद अपनी बात पूरी तरह कह नहीं पाता। तो उस इंटरव्यू में मुझे याद है, शायद रुदाली के बाद की बात हो रही थी, दिल हुम करे उन्होंने लिखा है ना, बिल्कुल मुझे बताया, तब उनसे पूछा था किसी ने कि इस तरह के जो आपने शब्द उठाए हैं, दिल हुम करे, घबराए, हाँ, मन घन घन करे, घर जाए, कोई बूंद कभी पानी की मेरे नैनन से कभी पानी की मेरे नैनन ने बरसाए। तो कहते हैं वो कि मैं इस तरह की स्वतंत्रता ले लेता हूँ। तो उनके जितने भी प्रिय संगीतकार रहे हैं, और जब वो कहते थे कि इस तरह से आप बनाओ, मतलब कई सारे उनके गीत जो पहले गुलजार लिख के देते हैं, मुझे लगता है आरडी साहब पंचम के साथ तो बहुत उनकी लड़ाई होती थी। पंचम दा कहते थे क्या लिख के ले आया भाई, मैं कैसे बनाऊंगा इस पे, राइट। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रखर व्यक्ति हैं गुलजार, और मुझे लगता है उनकी रूह जो है
उसमें पूरी शायरी है, शब्द नाचते हैं, कल्पना या छवियाँ उनके अंदर जीती हैं, तो उनके लिए चाहे धुन पहले बने या धुन बाद में बने दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो अपनी कविता या नज़्म कहते हैं तो तब आप उनका मीटर देखिए। अभी मैं उनकी एक नज़्मी सुन रही थी, आप कविता कहें नज़्म कहें, मैं ठीक से मुझे उसके शब्द याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि इतने दिन बाद जो भी मिली है उनकी प्रेयसी या प्रेमिका, और तुम्हारे सिर पे ये जो बाल जो चमक रहे हैं बिल्कुल, दरअसल तुम और अच्छी लग रही हो, और ये जो तुम्हारा शरीर पहले से कहीं भर गया है और तुम पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही हो। उस कविता पे मैंने देखा लोग इतना ज़्यादा उनको प्रेज़ कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं मैंने भी तय किया कि मैं अपने बाल रंगना छोड़ दूंगी। शायद कभी कहीं गुलजार सा कोई आदमी आ जाए और कहे कि तुम सफ़ेद बालों के साथ पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो ये उनकी नज़्म और शायरी का असर है जो सीधे आप पे घर करती है बिल्कुल। तो ये है कि जब आपको स्वतंत्रता मिलती है, आप अपनी कविताएं लिखें तो वहाँ आप अपने पूरे दिल से लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं। फिल्मों के लिए आप जो है मीटर पे लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है गुलजार साहब ने कभी समझौता नहीं किया होगा। सत्या जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो मीटर हम पकड़ नहीं सकते, नॉर्मली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एक लैंग्वेज की मीटर और द कैडेंसेस आर डिफरेंट और दूसरी लैंग्वेज से मिलती नहीं है। पर कोशिश तो ये होती है कि जो लिख रहे हैं, जो पोइट्री कह के लिख रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसमें अपने मीटर तो रहे, वो पोइट्री जैसे ही लगे, और ये नहीं लगे कि हमने उसे पैराफ्रेज करके प्रोज बना दिया। हाँ, उसमें एक आंतरिक प्रवाह रहे। हाँ, there has to be a kind of rhythm to it, a meter to it. Sometimes I was lucky that even the rhymes came in. नहीं, अलिटरेशन तो मुश्किल होता है कभी कभी, अलिटरेशन या तुकांत को ले आना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो उसका आंतरिक जो प्रवाह है, उसका लय है, उसकी भाषाई जो उसका मैनेजमेंट है वो अच्छा। कभी कभी राइम्स भी आ जाते हैं। राइम्स भी आ जाती है हाँ, कभी, राइम्स तो 2 पोएम्स में तो बिल्कुल राइम्स आ गए, जैसे उन्होंने किया था। आई थिंक इन रूमी, आई थिंक द राइम्स हैव कम ऑटोमेटिक एंड दे जस्ट केम, आई मीन दे जस्ट केम। सो आई थिंक समवन अप देयर वाज लिसनिंग कि अच्छा इस में भी गुलजार की रूह आ गई थी। हाँ। अच्छा, अंततः ये माना जाना चाहिए कि मतलब किसी भी टेक्स्ट का अनुवाद किसी दूसरे टेक्स्ट में, सोर्स या टारगेट लैंग्वेज में आपस में जो ट्रांसलेशन है, वो एक आत्मा का मेल मिलाप है, एक मतलब उसकी आत्मीयता का अवतरण हो जाए आपके हृदय में। जैसे कहते हैं किसी से हमारा हृदय छंद मिले, तो वैसा ही महसूस करे। आप उदास हैं तो उसको आदमी समझ ले। तो जो गुलजार का जो पूरा का पूरा परसोना है, पूरा व्यक्तित्व है, कोई नया व्यक्ति भी प्रवेश करे अगर गुलजार को अनुवाद करने के लिए, पहले समझने के लिए, तो उसकी सीढ़ी क्या होनी चाहिए? गुलजार जैसे शख्सियत को ट्रांसलेट करने के लिए क्या उपक्रम होना चाहिए, क्या सोपान, क्या सीढ़ी होनी चाहिए? पहले क्या क्या करे वो, उसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है? I think first of all you have to understand him through his work, because that is the best mirror. You can't go and ask him, who are you? Yeah. I mean, you can't ask anybody, who are you? So anything, I think any subject, before anyone starts writing, you have to understand what that subject has created, to understand how it reflects the person behind what has created. So that is the first window you open. Okay. And then I suppose you read, maybe if you're translating, for example, you read what has been written very carefully to understand कि इसमें क्या है जो इन्होंने पकड़ा है, and then you capture that and you bring in your own perceptions in the translation without disturbing the original. So that's where the language, the dexterity of language, the command over the language comes in. कि you are saying what you want to say, but without it interfering with what has already been said. I think that is a very, very thin line between creativity and just plain translation, which one has to walk very carefully. ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात सत्या जी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये जो क्रिएशन है, इट इज़ नॉट जस्ट
आई मीन यतीन्द्र भी तो एक तरह से, हम लेखक भी तो अपने भावों का ट्रांसलेशन करते हैं, अपने 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 ख्यालों का अनुवाद करते हैं। यतीन्द्र जी की जो मेहनत है एक लेखक के रूप में, एक लेखक के साथ सह यात्रा करने में और इस पूरी किताब को बनाने में, जो कि गुलजार उनके शब्दों में खिलकर खुलकर प्रकट हुए हैं। गुलजार इससे बाहर भी हैं, लेकिन इसमें जितने हैं उतने पर्याप्त हैं। यतीन्द्र की इस मेहनत को, इस स्किल को, इस गुणवत्ता को, इस कौशल को, इस लेखकीय प्रबंधन को आप किस तरह से आंकती हैं? इतनी बड़ी किताब है जो कि आपने 2 साल से कम समय में ट्रांसलेट किया, 2023 में किताब आई और 25 में आपका ये ट्रांसलेशन आ गया। तो उनकी मेहनत को, इस पूरी किताब के पीछे गुलजार तो हैं, सब गुलजार हैं, लेकिन गुलजार के पीछे की जो नेपथ्य का जो इतना प्रयास है, यतीन्द्र का क्रिएटिव प्रयास, उसको किस तरह से आंकती हैं आप? क्या आपको लगा कि यतीन्द्र की भाषा में भी वो उच्छल जलित तरंग है, जैसा आप गुलजार के नगमों को और गानों को और उनके राइम्स को पढ़ते हुए महसूस करती हैं? मुझे लगा कि आई कुड सी द रिस्पेक्ट, आई कुड सी द ऑ, आई कुड फील द फैक्ट दैट इन Yatindra's mind, Gulzar is larger than life. I could get that. Oh, I could बहुत get. अच्छा। I could also get the feeling that he has really worked on understanding Gulzar Sahab's work, looking through. I mean, looking through his poetry, sifting through the lines, finding the imagery, picking out how many instances of the moon, how many different ways Gulzar Sahab talks about the moon. I think that's a lot of work, which is why I say it was a blessing for me to do this book, because through this I understood how to write a biography differently. मैंने तो 5 लिख चुकी हूँ, पर ये अलग तरीके का है, इससे मैंने भी कुछ सीख लिया। और ये भी सीख लिया कि गुलजार साहब is like I told him that you're like an onion, पील करते जाओ तो कुछ नया आते रहता है। He says मैं रुला दूंगा तुम्हें यहीं से। Do I make you cry like an onion? I said आपका किताब तो मुझे रुला ही दिया एक बार। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इस किताब के जिन अंशों में आपको बहुत आनंद आया ट्रांसलेशन करने में, जो लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको पढ़कर सुनाया जाए तो ये एक बहुत बेहतरीन अवसर होगा। या बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए, बिल्कुल आई एम गिविंग यू। मैंने कहीं रखा नहीं, जल्दी मैं कहाँ इतने बड़े किताब में ढूंढूं। I think I like the question answer section very much because you hear Gulzar Saab's voice in it, and it's 1/3 of the book. So let me just at random pick up. So he's talking about S.D. Burman. Now it's just coincidence that I opened this page. So he says, what do you think about S.D. Burman's music, especially since your career in music began with him? Gulzar Saab says, this is a very personal opinion, but I consider him a banyan, a very big banyan tree. It has countless branches, some swinging and some swaying. So just as the branches hang from the tree, in the same way, a great many people are linked to S.D. Burman and influenced by his music. And if you want to see what influenced him, you will find it in Bengal's folk music, in Baul songs, and in the Baitali songs of the boatmen. Yatindra says, indeed he was a veteran artist who has influenced an entire generation. Which aspect of his composition do you find most beguiling? Gulzar Saab says, Ab ke baras bhej bhaiya ko babul. Father, send my brother to fetch me home this year. From Bandhini is Dada's most touching song. The duet with Lata and Rafi in Abhiman, Teri Bidya Re, seems to me one of Dada's signature compositions. Besides these two, songs sung by Dada himself, Sujata and Bandhini, Sun Mere Bandhu Re, listen, oh my friend, and O Mere Majhi Mere Sajan Hai Us Par, Boatman, my love is on the faraway bank, have been among my favorites. And of course, the songs of Guide are at another level and have taken S.D. Burman to the highest stature in the history of Hindi film music. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
उन्होंने पंचम जी पर अपनी कविता भी लिखी है केस्ड में, जो आपने शामिल की है। मैं जो है इससे पहले कि इसका जाल समेटूं बहस का, कोई ऐसी बात जयंती जी रह गई है जो आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हों में कहना चाहती हैं? मेरा मानना है इस अनुवाद, इस किताब के जरिए गुलजार की उम्र कुछ और बढ़ जाएगी। आहा, क्या बात! एक बार जोरदार तालियां गुलजार साहब के लिए। क्योंकि गुलजार साहब, मैंने जैसे बताया कि उस उम्र के उस दौर में है, और हम चाहते हैं कि ऐसे शख्स सालों साल हमारे अंदर रहें, क्योंकि उनका रहना, उनकी कविताओं का रहना और उनकी कविताओं नज़्मों का हर भाषा में रहना, और मेरा मानना है जो सवाल जवाब है वो भी अगर आज का युवा पढ़ेगा तो उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। बहुत अच्छा जयंती जी, मुझे लगता है कि मैं जब पढ़ रहा था कुछ चीज़ें निष्कर्ष की यतीन्द्र पूछते हैं कि क्या किताबें बचेंगी, तो गुलजार साहब का निश्चित रूप से किताबें बचेंगी, बिल्कुल। ये बचेंगी। और उन्होंने कहा कि मैं तो मोटर गैराज में पेंट भी करता था, मैंने जो सब किया है उसी का नतीजा है कि मेरे पास वो स्किल है। वो कहते हैं गुलजार की कविता लगता है जैसे एक लंबे सफ़र पर निकली हुई है। यतीन्द्र का कमेंट है, उनके शायर की यात्रा एक खाना बदोश शायर की यात्रा है। मैं इससे पहले कि इसको कंक्लूड करूं और आदित्य जी को बुलाऊं, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कुछ उनकी शायरी और अशार जो मैंने लिए हैं इससे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि है कि आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी इंतज़ार दिखे। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज़्म लगती है, कल का हर वाक़िया तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है। और ये भी कि खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना ख़त खुला अनजाने में, दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में। और अंतिम कि राख को भी कुरेद कर देखो, अभी जलता हो कोई पल शायद। गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखीं, जिसका अनुवाद, जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने गुलजार की शख्सियत पर, वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, और अनुवाद इसका भव्य अनुवाद हम कहेंगे, भाषाई अनुवाद सत्या शरण जी ने किया है, जो कि खुद बड़ी लेखिका हैं, बायोग्राफर हैं, जीवनीकार हैं और एक लंबे अरसे तक पत्रकारिता से जुड़ी रही हैं। इस बातचीत में निष्ठा जी हमारे साथ थीं, हमारे साथ हैं जयंती रंगनाथन जी और सत्या जी, आदित्य जी और आज सब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद गुलजार साहब की दीर्घायु की कामना करने के लिए, और यतीन साहब से इस गुजारिश के साथ कि ऐसे ही वे लोगों की जीवनियों पे काम करते रहें, खुद अपने कवित्व का जो लाभ है अपने इस लेखन को भी देते रहें, सींचते रहें, हिंदी इसी तरह से पल्लवित होती रहे और ये विश्व में फैलती रहे अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के माध्यम से। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आदित्य जी, अब आप। धन्यवाद सर। दिल्ली ने आज एआई समिट के बीच भी आप सब साथ आए और किताब, अनुवादक, लेखक, आलोचक से राब्ता किया, आपका बहुत धन्यवाद। दरअसल यतीन्द्र जी पिछले 2 वर्षों से कुछ ऐसी परिस्थितियों में थे कि बहुत संवेदनशील परिस्थितियां हैं वो, जहां उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए, और इस वजह से निरंतर लेखनी के साथ, संरचना के साथ नाता जोड़े रखना, और उसमें ये कुछ समय भी ऐसा हुआ कि जब किताब अंग्रेज़ी वाली आई तब पिताजी मतलब अंकल हमारे बीच नहीं रहे थे, तो प्रमोशन इस किताब का उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। फिर गुलजार साहब की तबीयत, लेकिन उसके बावजूद चलते चलते निष्ठापूर्ण तरह से जब जैसे संयोजन होता गया, जैसे सब सितारे साथ आते गए, इसी तरह से हम अलग अलग शहर में। सत्या जी के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि लेखनी, अनुवाद, संपादन, ये सब एक जगह, लेकिन मार्केटिंग कैसे होती है किताब की, वो उस अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। हम सीख रहे हैं उनसे रोज़, और इस तरह से ही कारवां बढ़ता रहेगा किताब का।
हिंदी का जब लोकार्पण हुआ हिंदी संस्करण का 2023 में 3 महीने में पहला संस्करण खत्म हो गया था और हिंदी के बाज़ार के हिसाब से ये महंगी किताब है क्योंकि इसमें कई रंगीन पन्ने हैं, इसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई प्रोफाइल रखा गया और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बिकेगी, लेकिन बिक गई और बहुत प्रसन्नता के साथ हमने दूसरा संस्करण लोकार्पण के दिन, क्योंकि लोकार्पण पुस्तक छपने के 3 महीने बाद हुआ, लोकार्पण के दिन दरअसल दूसरा संस्करण लोकार्पित हुआ था, तो ये भी अभूतपूर्व घटना है। उसके बाद लगभग 1 वर्ष के अंदर पुस्तक अनुवाद तो हो चुका था, लेकिन गुलजार साहब से अप्रूवल्स लेने में 8 से 9 महीने का समय हुआ क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य और उनकी भी पूरी व्यस्तताओं के बीच उन्होंने एक एक पंक्ति को किताब की पढ़ा, फिर उस पर एडिट्स हुए, टू एंड फ्रो हुआ और फिर उन्होंने जब बहुत सहर्ष अप्रूवल दिया तो हम सभी को लगा कि एक बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर आया है। तो इन सभी गतिविधियों के बीच एक प्रकाशक, लेखक, संपादक, अनुवादक साथ बने रहते हैं। मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा कुटुंब है और यही एक सबसे बड़ा परिवार है। अगर कहीं पे कुछ भारी हो जाता है तो कुछ दूसरे पहलू का हल्कापन उसे समेट लेता है, कहीं कुछ हल्का रह जाता है तो दूसरे पहलू का भारीपन उसे समेट लेता है। और इसी के साथ आज इस पूरी शाम को हम अंतिम चरण पे ले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने उग्र संबोधन में कहा था कि ओम जी का होना यहाँ एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कवि होना और कवि हृदय आलोचक होना ये बहुत दो अलग बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। जो लोग हिंदी से राब्ता रखते हैं, हिंदी के साहित्य बोध से राब्ता रखते हैं, वो ये जानते हैं कि आलोचना बड़ी क्लिष्ट विधा है और उसमें आलोचना के बीच भी काव्यात्मकता बनाए रखना, आलोचना भी कर देना लेकिन मानवीयता का पल्ला ना छोड़ना, ये हम ओम जी से सीखते हैं। मुझे लगता है कि ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिज ओन राइट और जिस सहजता से, जिस प्रेम के साथ, वो मैं कई बार कहती हूँ ओम जी कि इतना कभी कभी बहुत ख़राब भी पढ़ने को मिलता है, आप कुछ कहते नहीं इसके बारे में, बोलते जब अच्छा ना हो तो नहीं कहना चाहिए मुझे याद है ये बात, ये सीखने लायक बात है। जो समरसता ना लाए उसको छोड़ देना चाहिए और ये बहुत उदारता से ये भाव आता है और ओम जी में ये स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं, हमारी पीढ़ी उनसे ही सीखती है। बहुत धन्यवाद ओम जी।